खुल गया मैम। Yesterday I had sent you ना एक PDF फाइल था, वर्ड का शायद था, on the Congress sessions. खुल गया था? Yes, ma'am. Yes मैम खुल गया। That is the additional information that I wanted to give you. ठीक है, regarding the various sessions of the Indian National Congress, जो मतलब हिस्टोरिक है, किसी चीज के लिए जाने जाते हैं इम्पोर्टेंट, तो उसको हम क्लास में भी एक बार देख लेंगे, बट दैट इज मोर फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, कि आपने किसी भी कंपटीशन में अगर देना है तो उसमें ये चीज आपको हेल्प करेगी। ओके, तो उसको हम लोग एक बार आप लोग याद कर लेना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है। एंड देन मे बी व्हेन आई after your this classes are over, तो I will be making quiz for all of you, जैसे आप लोगों को दिया था ना, तो I will give you on various topics, तो आपको बहुत अच्छे से फिर ये याद हो जाएगा। Yeah, if I have to attach something in the chat box, how do I do that? Copy paste से आएगा। Actually, I had एक और डिटेल आपके लिए मैंने किया था, बट एनीवेज आई विल शेयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप देन, उसको भी आप लोग फिर पढ़ लेना। एंड प्लीज गिव योर फीडबैक दैट ऑल ऑफ यू हैव रेड इट, बिकॉज नो पॉइंट गिविंग यू थिंग्स इफ यू आर नॉट रीडिंग। ठीक है, और वो बच्चे जिन लोगों ने क्लासेस थोड़ी सी लेट लगाई हैं, नाउ प्लीज टेल मी, आर यू लुकिंग अप द जूम क्लासेस या प्रेजेंटेशंस जो यूट्यूब पे डाली हुई हैं? Because what is happening is not in your class. Yesterday I was talking to some student, honors ka bacha, in the 5th semester. She had not even seen even a single presentation Zoom class जो उसका मिस हुआ होगा, and then वो चाहते हैं कि दोबारा से हो। So but it is for your benefit, you all have to प्लीज, चाहे क्लास भी लगा लेते हो, आपके लिए तो बहुत अच्छा एक टूल हो गया है ना, आपकी रिवीजन हो जाएगी। इफ यू वांट टू जस्ट ब्रश अप whatever has been taught to you. Yesterday I was making a presentation for you. Let me see, it has to be brushed up, but मेरे को था कि आपको एक बार मैं ना इसको दिखा देती हूँ, तो let me just check and I will show it to you. जस्ट अ सेकेंड बेटा, मैं ना वो प्रेजेंटेशन को निकाल रही हूँ। दिस कैन नॉट बी मिनिमाइज्ड, वेट, just give me a second. There are 3 presentations I was making yesterday. Okay. Whatever I understood, probably I will put some light on that. So, with this preliminary remark, I will request Dr. Arti. Can everybody see that PowerPoint? I just shared it. Wait. Yes.
Can you see my screen now, beta? Yeah, this is it. देखिए, this is something which was already presented. But मुझे था कि I should just give you an overview of this. Okay. ये जो सारा है बेटा, this I have started a Indian history series जिसमें आगे का तो बहुत कुछ ऐड किया हुआ है मैंने पहले ही, but this is one part which I'm going to brush up also, and I will send you the presentation. ठीक है, सारा कुछ आपको बाद में मिल जाएगा on the YouTube, because this is just a brief outline and I'll be adding many other things in this. Fine. So this is rise of nationalism. Just a brief overview for all of you. जो आप लोगों ने कर भी लिया, कोमल has presented कि क्यों nationalism इंडिया में start हुई, because one अनमोल ने present की थी presentation ना अनमोल? Yes, ma'am. So for the first time, as I have been telling you, that there was the political unity. ठीक है? So we had one administration under one single power. Okay, so we had a uniform system of law and governance in India at this point of time, and then development these will be organized in a series, but all these points are there. Development of communication and transport. आपको पता है कि after 1857 the railways came into existence. Telegraph, आपको मैंने बताया थी कि initially जो system था, कम्युनिकेशन वाज बाय जो आपको पता है ना कि घोड़े के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जो है संदेश को भेजा जाता था, है ना, पीपल वर ट्रैवलिंग, दैट इज हाउ द मैसेजेस वर सेंट. एंड लेटर ऑन what is happening is you had pigeons doing this work. Even now in Odisha there is a, मैं उसको ढूंढ के आपको बताती हूँ, there's still a post office जहाँ पर they're using pigeons also just to retain that tradition. But later on, what was telegram? आपके ज़माने में you will not understand the importance, but it was अगर किसी को भी कोई information देनी है तो very quickly it was transferred. I had given you the example, remember कि वो रानी झांसी की भी जो डेथ की खबर है, किस तरह से टेलीग्राम से दिल्ली में इन्फॉर्म किया गया था. So this is the fastest means of communication which the British developed. अब अगर एक चीज देखो, हर चीज मैंने जो है इंडिया में जो अंग्रेजों ने की है, that had a reaction also. एक्शन एंड रिएक्शन. ठीक है, किया अंग्रेजों ने अपने लिए था, बट इसका फायदा इंडियंस ने भी उठाया. फाइन. और कैसे उठाया? तो ये थोड़ी ना कि बेटे टेलीग्राम या रेलवेज को इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ अंग्रेज कर रहे हैं, इवन इंडियंस आर गेटिंग टू यूनाइट. ठीक है, so at this time there were construction of canals, the roads were improved, and these all these activities, इनसे जो है लोग आपस में मिलने लग गए. जब मैंने कल आपको एक प्रेजेंटेशन दी थी, if you remember, on the contribution of कन्या महाविद्यालय, the girls of कन्या महाविद्यालय, है ना, उसमें मैंने आपको बताया था ना कि ये लोग जाकर जो कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे हैं पंजाब में, वहां पर ये अपने जो देशभक्ति के गीत गा रही हैं. आचार्य लज्जावती used to translate the speeches of the people, कांग्रेस लीडर्स जो दूसरे प्रांतों से आ रहे हैं, उसको इंग्लिश से पंजाबी में करके बताती हैं. तो ये जो बंगाल के नेता अमृतसर में आ रहे हैं, बंगाल के नेता जलंधर में आ रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? इट वाज बिकॉज ऑफ द रेलवेज.
तो लोगों को आपस में इन्होंने जोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है. And this is going to help people to organize better. Fine. Now another thing was the English language and Western system of education. आपको पता है कि बेटा जो इंडिया है, it is divided into so many states. I have been traveling a lot because my father was in the army and my sister still she's settled in South. अब मानोगे बेटे अगर साउथ में अभी भी हमें कम्युनिकेट करना है वहां पर, तो वहां पे वी हैव टू यूज इंग्लिश, ठीक है. कई स्टेट्स में दे हैव दैट एंटी हिंदी सेंटिमेंट भी है लोगों में, जैसे इफ यू टॉक अबाउट तमिलनाडु एंड ऑल, तो वो दे विल नॉट मेक एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. सो ईदर इट हैज टू बी तमिल और इट हैज टू बी इन द लैंग्वेज दैट इज इजी फॉर देम. इंग्लिश में आप बात करोगे तो आज मैं अगर साउथ में जाके अपनी बात कह पाती हूँ, वो कैसे कह पाती हूँ? बिकॉज अंग्रेजी भाषा का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ. समझ में आ रही है? तो जब तक आप अपनी बातें नहीं कम्युनिकेट करोगे एक दूसरे के साथ, तब तक आपको उसका कोई भी फायदा नहीं होगा, ठीक है. सो सेकेंड थिंग वाज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, हम लोगों ने बात कर ली है, आप लोगों ने भी प्रेजेंटेशंस दे दी हैं. जो वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन आया, तो वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन ने क्या किया है? उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम और नेशनलिज्म, ये सारी चीजें जो पहले नहीं थी, लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आई टोल्ड यू, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की जो बात आ रही है, दिस केम इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन में, फ्रांस की जब क्रांति हुई थी, तब पहली बार ये कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है. तो ये जो है वेस्टर्न एजुकेशन की जब लोगों ने बात की, तब इंडियंस को भी ये बात पता चल गई कि अब तो है ना, हम तभी अंग्रेज हमें दबा नहीं सकते. अंग्रेज हमें बार बार कहते थे कि हम वो गोरी चमड़ी के लोग हैं, इसलिए भगवान ने उनको धरती पर भेजा है, ठीक है, शासन करने के लिए. बट दैट थ्योरी बिकेम रिडंडेंट बिकॉज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. और ये ज्ञान हमें कैसे मिला है? बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश. फाइन. नाउ रोल ऑफ प्रेस, हमने बात की थी कि जो इंडियन न्यूज़पेपर्स, बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन, अपनी जो बात को रखना, अपनी जो प्रॉब्लम्स को रखना, वो आजकल तो आपके पास सोशल मीडिया है, न्यूज चैनल्स हैं, आप फेसबुक पे भी बात करते हो, आप इंस्टा पे बात करते हो. बट उस जमाने में ओनली द न्यूज़पेपर्स वर द सोल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तो जो इंडियन प्रेस और इंग्लिश में जो इंडियन लोगों ने जो प्रेस लगाई थी, चाहे वो अंग्रेजी में हो, चाहे वो देशी भाषाओं में हो, उसने जो परेशानियां हैं लोगों की, उसको उजागर किया, ठीक है. Then we had talked about, you have already studied the social religious reform movements of the 19th century. ये सारे जो थे जो रिफॉर्म मूवमेंट्स थे, इन्होंने, जैसे आप देखो ना बेटा, आर्य समाज क्या कहता है? गो बैक टू द वेदास. उन्होंने कहा ये चीज कि वेदों में संपूर्ण ज्ञान है, तो हमें अगर कुछ भी चाहिए तो वी शुड कंसल्ट द वेदास. बी इट ब्रह्मो समाज या रामकृष्ण मिशन ने, उसमें स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका और यूरोप में जाकर अपने हिंदू धर्म की बात की, जो भारत की सभ्यता है उसके बारे में बात की. तो ये सारी चीजों ने एक सेंस ऑफ प्राइड हमारे अंदर आया. विवेकानंद को जब अमेरिका में लोग सुन रहे हैं, यू फेल्ट प्राउड कि oh my God, okay, this is the person from my country is being respected over there when he's speaking in Germany, France, Italy. So all these stories जो थी, इन लोगों ने हमारे अंदर एक भावना दी of importance and of of greatness. The next thing was the economic exploitation by the British. इसमें भी देखो, एक good deal of anti-British feeling was generated by the economic policy pursued by the British government in India. ठीक है, आपको ये मैंने बता चुके हैं ये चीजें
कि किस तरह से हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी उसको पूरी तरह से नष्ट किया अंग्रेजों ने, और किस तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत आपको बताया था कि किस तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिससे सैलरीज के द्वारा, दस्तक की सेल के द्वारा और ब्राइब्स के द्वारा ये सारा पैसा कहाँ पर जा रहा है, इंग्लैंड में जा रहा है। तो इंडियंस को ये फील हो रहा था कि अगर तो ये इंडिया की ही सरकार होती, see this kind of feeling if you try to understand, ये कभी भी मुस्लिम रूलर्स के लिए नहीं रही है जिस तरह से लोगों ने एजिटेट किया है अंग्रेजों के विरुद्ध। अगर आप देखोगे बेटा, जो थे मुगल्स भी तो इंडियंस नहीं थे, बट द डिफरेंस बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मुगल्स वाज कि मुगल भारत में आकर बस गए थे, ठीक है, उन्होंने इंडिया की सभ्यता को अपनाया, तो जो भी टैक्स वगैरह भी सपोज वो लेते थे वो भारत की भलाई के लिए यूज हो रहा है, फाइन। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम ब्रिटिश की बात करते हैं, अंग्रेजों की, ये कभी भी जो अंग्रेज हैं ये इंडिया में आकर सेटल नहीं हुए, ठीक है, दे हैड कम ओवर हियर, अपना जो पैसा कमाते थे और उस पैसे को जाकर लगाते थे इंग्लैंड में। तो इंडियंस को ये फील हो रहा था कि ये हैड इट, अगर कोई इंडियन सरकार होती तो मैं जो टैक्स देती हूँ आज की डेट में बेटे, या आपके पेरेंट्स जो भी टैक्स भरते हैं, वो टैक्स अगर आप देखोगे लोगों की भलाई के कामों के लिए, either it's the building of the railways or it is the building of the roadways, सारा काम जो है वो हमारे जो है टैक्स पेयर्स के पैसे से होता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा था, ये सारा पैसा कहाँ चला जाता है, अंग्रेजों के पास। सो दिस क्रिएटेड अ सेंस ऑफ बिटरनेस लोगों के बीच में। नाउ ये जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल बता ऑन द बेस ऑफ रेस होता है, ठीक है, ये जो है अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में और ज्यादा बढ़ गया आफ्टर 1857, क्योंकि अंग्रेज अपने आप को पहले भी बहुत ज्यादा अपने आप को सुपीरियर समझते थे और ये फीलिंग इनके अंदर और ज्यादा आ गई, और ये इंडियंस को दबाने के लिए इन लोगों ने पूरा जोर लगा दिया आफ्टर 1857। सो ये जो इंसल्ट हो रही थी बेटा, पहले जो था ना, इंडियंस को बहुत ज्यादा वो इसको फिर भी सह लेते थे, रीजन बीइंग that we were not educated and we were being told time and again कि आप लोग तो बहुत ही बेकार लोग हो, आप लोगों को ये नहीं आता, you are so bad। but once when we had, हम लोगों ने अपने धर्म में सुधार किए, अपने समाज में सुधार किए with the social religious reform movements, तब हमें लगा कि now we are equal। हम जब एजुकेट हो गए, एक व्यक्ति जब बेटा पढ़ लेता है, डिग्री ले लेता है, डॉक्टर बन जाता था, वकील बन जाता था, उसके बावजूद उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है सिर्फ इसलिए कि उसका कलर सफेद नहीं है, वो अंग्रेज नहीं है, तो क्या वो पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी भी उस ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करेगा? नहीं ना। तो ये एक रिजल्ट था जो जिसने लोगों के अंदर अंग्रेजों के विरुद्ध जो भावना है उसको बढ़ा दिया। नाउ दिस इज लॉर्ड लिटन। इसके बारे में मैंने उस दिन भी जब उसने अनमोल ने वो दी थी, सॉरी कोमल ने दी थी प्रेजेंटेशन, आई टोल्ड यू देन आल्सो दीज 3 पॉइंट्स वेरी क्लियरली। वन हैड टॉक्ड अबाउट द दिल्ली दरबार। आपको बताया था ना कि जब सूखा पड़ रहा था उस टाइम पर दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया था लॉर्ड लिटन ने, जिसमें लाखों के संख्या में पैसों को यूज किया गया, और ऐसे टाइम पर किया जब भारतीयों के पास खाने के लिए नहीं था। उसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास किया, उसने आर्म्स एक्ट पास किया, ठीक है। वर्नाक्युलर प्रेस आपको मैंने बता दिया था कि जो लोकल प्रेस है वो कुछ भी सरकार के विरुद्ध नहीं लिख सकती, अगर वो सरकार के विरुद्ध कुछ भी लिखेगी तो वो उसको बैन कर दिया जाएगा।
आर्म्स एक्ट के द्वारा इंडियंस को कहा गया था कि वो कोई भी अपने पास हथियार नहीं रख सकते। ये थोड़ा सा डर गए थे 1857 के विद्रोह के बाद। ये भी चीज मैंने आपको बताई थी, इल्बर्ट बिल, ठीक है। जो इल्बर्ट बिल है लॉर्ड रिपन के समय में बनाया गया था, और मैंने आपको बताया था ना, इसमें इन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो है वो जो कभी उसको कोर्ट में अगर जाना है तो दैट पर्सन विल बी ट्राइड बाय ज्यूरी। ज्यूरी मीन्स जिसमें इंडियन जजेस भी होंगे, यूरोपियन जजेस भी होंगे, एंड इट वुड नॉट बी इन द हैंड ऑफ वन पर्सन। बट इंडियंस को जब बराबरी पे लेकर आ गया लॉर्ड रिपन, इसके विरुद्ध जो था पूरे भारत में अंग्रेजों ने ही विरोध किया था, जिसकी वजह से ये बिल को वापस लेना पड़ा। एंड इंडियंस को अब ये कंफर्म हो गया था बेटा कि जो अंग्रेज हैं ये कभी भी हमारे हित में काम नहीं करेंगे, ठीक है। सो दिस इज all these points why I'm showing you this presentation again is you should have a clarity of what you want to write in this, okay? And this is also for all of you who are going to make a slide. Anmol and Jasdeep, Ashu, you all have been doing a very good job, and Navroz has been presenting and others जिनके नाम अभी मुझे skip कर रहे हैं। but जब आप presentation बनाते हो तो बी वेरी केयरफुल बेटा। जैसे मैंने अब इसमें आपको बिल्कुल 3 पॉइंट्स दिए हैं स्लाइड में। व्हेन आई विल बी मॉडिफाइंग इट विल कम इनटू बुलेट्स। तो आपको पता है कि मैंने 3 चीजें ही बोलनी है, ये 3 चीजें, ठीक है। लाइक व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट लिप्टन, आई हैड गिवन यू 3 पॉइंट्स। सो व्हेनेवर यू हैव योर स्लाइड्स हैव टू हैव वेरी लिटिल मटेरियल रिटन, ठीक है। दीज आर जस्ट एन इंडिकेटर्स कि ये चीज हमने बोलनी है। बाकी कहानी तो हम सबको आती है ना बेटे, आप तो बाकी एक्सप्लेन कर ही दोगे। रीजन क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा मटेरियल हम डाल देते हैं ना इसके ऊपर, अपनी प्रेजेंटेशंस के ऊपर, जो सामने वाला पढ़ने वाला है एक तो वो पढ़ भी नहीं सकता। जब आप ज्यादा लिखोगे वो छोटा लिखा जाता है ना, फॉन्ट्स रिड्यूस। एंड सेकेंड इज कि so much of material on the one slide, you lose interest. You don't even try to read after the first point. ठीक है। So one thing for putting up this presentation again for you is have minimum material on your slides. अब जब आपने एग्जाम में पढ़ना है इसको, आपको पता है बेटे कि आप इतनी बार पढ़ चुके होगे, टेस्ट दे चुके होगे, आपको सब पता होगा कि मैंने क्या लिखना है। बट आप सिर्फ एक ब्रश करोगे, ओके दिस इज इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, 1 2 3 points I have to write this. This is Lytton, I have to write 1 2 3. Fine. So this is what I wanted to tell you while giving this presentation is bare minimum चीजें होनी चाहिए। See, when I will be putting up this presentation for showing it to somebody now, what I will do is I will be adding some pictures also. बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपका पिक्चर्स नहीं चाहिए। मैं पिक्चर्स को क्यों डालूंगी? टू रिटेन द अटेंशन, ठीक है। लोगों को अच्छा लगता है पिक्चर्स जो हैं वो ज्यादा अच्छा मैसेज पे वो करती हैं। अब देखो जब मैंने इल्बर्ट को बताया है ना, तो लोगों को जानने की एक इच्छा होती है ना कि अच्छा ये अच्छा बंदा कैसा दिखता था, कौन था। यू पुट अप दैट पिक्चर। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट लॉर्ड कर्जन। He has put in so many repressive policies. तो हर इंसान का तो okay, this is the person. And otherwise also, when you go for some competitive exams, जब ये ऐसी personalities आती हैं, कई बार आपको आता है कि picture को identify करो, ठीक है। So when you have to identify that picture, कहीं ना कहीं आपने देखी होनी चाहिए, क्योंकि sadly जो हमारी किताबें हैं इंडिया में, they are not pictorial, है ना, किसी भी पोस्ट में फोटोज नहीं आती हैं ज्यादा। So this is one very good platform जिसमें हम लोग इसको describe कर सकते हैं। Fine. Where has it gone now? Okay. So this is till here I have made it for you now. Okay, ठीक है। So now you're getting a clear perspective इंडियन नेशनलिज्म की क्यों वो हो रही है, ठीक है।
So this is how you are going to present your slides जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। एंड जिन बच्चों ने कर लिया है, अगर आप अपनी स्लाइड्स को थोड़ी सी प्रेजेंटेशन को ब्रश अप करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। उसको हम बहुत अच्छे तरीके से करके आप लोग उसको ब्रीफली कर लो. इफ यू फील, नाउ गो बैक टू योर प्रेजेंटेशंस एंड सी what else needs to be revised and reformed, then we will consider that. Fine. To take care all of you. मेरा इसमें निकल गया, I have made presentation actually on Indian National Congress and उसको reason